Currently, we are operating in one market only, and we have sold almost 170 crore of inventory, 5,000 room, 10,000 room. And when I entered into real estate, I was negotiating for 4 CR and 5 CR. I was like, ये अच्छा काम. Real estate में, see, it's a business which requires a lot of patience because बड़े transaction easily नहीं होते हैं. तो उसने एक बात बोली which was so true. उसने बोला जॉब में मैंने तुम्हें इससे ज़्यादा टेंशन में देखा है, तो तुम जो कर रहे हो वही करोगे. एक टाइम था जो मैं ज्वेलर के पास गया एंड मैंने वाइफ को नहीं बताया बिकॉज अकाउंट में पैसे एकदम ख़त्म हो गए, ज़ीरो ऑलमोस्ट. तो मैंने उससे पूछा कि यार भाई ये तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है बिकॉज इतनी सारी मेरे विजिट्स वगैरह हो गए. तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा यार मैं तो सब कर रहा हूँ. कह रहा दिस इज़ द प्रॉब्लम कि सब करने पे नहीं कर पाओगे. Okay. Then I thought, okay, I have to be very much, I have to be the king of one market. मुंबई में अपार्टमेंट विदाउट शोइंग आप बेच नहीं सकते हो. Correct. विच इज़ माई एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं होगा कि सर आप एक काम करो, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, अपार्टमेंट हो गया आपका. दिल्ली में ऐसा होता है. प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो आई थिंक सबसे पहले लोकेशन है, Okay. ब्रांड है और प्राइस है. चैनल पार्टनर के थ्रू जाने से प्लस पॉइंट यही है कि ही हैज़ द नॉलेज ऑफ बॉटम प्राइस. Hi all, welcome to the Strategic Pulse. I'm your host Sudarshan Praveen. Today we have Brajesh Verma as our podcast guest. He is a channel partner in the real estate industry. In this episode, we will deep dive into his journey, understand the business of what a channel partner does, and how one can go about starting their own business as a channel partner in the real estate industry. Stay tuned and watch the entire episode. So hi Brajesh, welcome to the Strategic Pulse. Thank you. So for all our viewers who are seeing you for the first time, can you briefly introduce yourself and describe what you do? So, my name is Brajesh Verma and I have got my firm called Pretty Homes Real Estate Advisory, which I started 3 years back. And currently we are operating in one market only, and we have sold almost 170 crore of inventory in this Wow. market. So, I'm coming from a hotel management background, then MBA, then I was doing job for almost 12 years. Then I started my firm, and as of now this is going on. And what got you interested in the real estate industry? So to be honest, if you ask me like 5 years back, I was not aware of anything about the real estate Wow. because I was a hotelier. Okay. I did my hotel management in 2009, Okay. and then I did my MBA from Symbiosis Pune for distance learning. So I was doing job for a long time. Okay. Similarly, I was doing acting also. Okay. Yeah. So I'm from Delhi. I'm from UP. But after completing my course, hotel management, I came to Delhi. Then I got interested into acting. Okay. I was doing theatre for some time in Mandi House. And then I joined a acting course in Cinematic Life. वहाँ से I thought, okay, I should do something into acting also. So I was doing job into sales and marketing of hotels. Then one fine day I realized I should do acting now. Okay. Then I resigned from my job and I shifted to Mumbai Okay. in 2014. Okay. So that's how I came to Mumbai. I was doing job, I was doing acting, theatre, web series and everything. Then I got a call from a company called Kanakya Group, and they wanted to hire me for a role called corporate relation. Okay. Then I entered into real estate. Okay. So that was my first job. In 2014. So that was in 2018. I'm 18. talking, yeah. Okay. So in 2018, when I entered into real estate, before that I was into hotels. Right. So one thing which was fascinating me, like in hotels, I used to talk about 5,000 room, 10,000 room. And when I entered into real estate, I was negotiating for 4 CR and 5 CR. I was like, ये अच्छा काम है कि डायरेक्टली आप 4 करोड़ के लिए बात कर रहे हैं, 5 करोड़ के लिए बात कर रहे हैं. तो फिर वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि भाई इट्स अ बिग मनी काइंड ऑफ वर्क. तो आई वॉज वर्किंग फॉर कनाकिया ग्रुप फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 3 years. देन कोविड आ गया और सबकी जॉब चली गई, उसमें मेरी भी जॉब चली गई. एंड देन आई स्टार्टेड माई फर्म.
So that's how real estate accidentally हो गया मुझे. So, like you mentioned, in COVID, people got laid off. So, what was your trigger point to start your own venture? Because you could have, of course, joined another job. Yes, so sometime it is good that you don't have the options. So I didn't have the option. Okay. तो जॉब जाने के बाद आई वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब. दैट वॉज ए टफ पीरियड फॉर एवरीवन. Right. हर किसी के लिए टफ था, क्योंकि पहली बात तो कोविड का माहौल ही ऐसा था. Yeah. सब डरे हुए थे. Right. और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे. Okay. सो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम HR डिपार्टमेंट एंड दे सेड सो कंपनी हैज़ डिसाइडेड दैट यू नीड टू पुट डाउन योर पेपर्स. Okay. आई वॉज लाइक ओके. मेरे माइंड में पहली बार आया कि मैं वाइफ को कैसे बताऊंगा. फर्स्ट थिंग आई वाज लाइक ओके बट व्हाट हैपेंड बिकॉज वी हैव क्लोज नाइस डील्स. मैं तो बिजनेस दे रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है. दे सेड नहीं, दिस इज़ द यार कंपनीज पॉलिसी. और बिकॉज ऑलमोस्ट 70 to 75 लोगों को एक साथ उन्होंने निकाला था. सो ओके, फ़ोन रखने के बाद मैं सोच रहा था अच्छा ठीक है अभी क्या करना है. तो मैं वाइफ के पास गया एंड शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग. Right. मैं वाइफ के पास गया, मैंने कहा यार आई थिंक सबकी जॉब जा रही है तो शायद कुछ कॉल वॉल आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड. हाँ, तो उसका माइंड थोड़ा सा बन गया कि जॉब जा सकती है. फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा यार आई थिंक वो मेरा फ्रेंड था ना, उसके पास भी जॉब का कॉल आया. तो तब तक मैंने नहीं बताया था उसको, Okay. बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी को Yeah. स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं. जी. फिर मैंने उसको थर्ड डे बताया. मैंने कहा यार आई गॉट ए कॉल फ्रॉम स्नेहल HR. या आई गॉट ए कॉल फ्रॉम स्नेहल एंड शी सेड कि यू नीड टू पुट डाउन योर पेपर्स. तब तक वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो चुकी थी. Okay. तो वो बोली इट्स ओके, देख लेंगे हम लोग क्या करना है. फिर मैंने घर वालों को बताया, क्योंकि उस टाइम पे उससे पहले जो सैलरीज थी वो ऑलमोस्ट आई गेस 50% कट होके आ रही थी. Okay. यस, क्योंकि वो जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था उन्होंने 2 महीने बाद कट करना शुरू कर दिया था. Okay. सो फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी तो सपोर्ट हेल्प वो सब ज़रूरत होता है. ऐसे टाइम पे फैमिली और फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में फैमिली और फ्रेंड्स का इतना बड़ा रोल है कि शायद किसी का नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट. तो मम्मी ने बोला कि तो क्या हुआ, हम लोग बैठे तो इट्स ओके. और वो गांव में है, दे आर इन फर्रुखाबाद. ठीक है, दैट्स माई होम टाउन. फिर भाई से बात हुई और दीदी से. दे सेड, एवरीवन सेड इट्स ओके, यू बी कंफर्टेबल, कुछ ऐसा वो नहीं है. फिर मैंने वाइफ को बोला कि यार ठीक है जॉब देख लेते दूसरा. तो उस टाइम पे दोस्तों को फ़ोन किया, फ्रेंड्स को, यार जॉब चाहिए इमीडिएटली, कुछ तो चाहिए. तो एक छोटी सी कंपनी थी जो हायरिंग कर रही थी, और कहीं हायरिंग नहीं थी, वहीं पे हायरिंग हो रही थी. Okay. तो मेरे फ्रेंड ने बुलाया, मैं चला गया. एंड दे सेड वी कैन ऑफर यू दिस सैलरी एक्स अमाउंट, विच वॉज ऑलमोस्ट 75% ऑफ पे कट. Oh. मतलब जो मिल रहा था उससे 75% कम पे ऑफर था मेरे पास, Okay. और कहीं पे ऑफर था ही नहीं. सो आई वाज लाइक यार कम से कम घर का रेंट तो दे पाऊँगा. मैंने कहा ठीक है ज्वाइन कर देते हैं. Okay. तो वो मैंने वो भी पवई में ही था, Okay. वो मैंने ज्वाइन किया. और उसके बाद फिर 2 महीने 3 महीने मैंने वहाँ पे काम किया. बट वो भी ना सैलरी पहली बार तो कैश में देते थे. Okay. But very typical because I'm from corporate background. I was working with Holiday in kind of chain, Okay. Sarovar, Lemon Tree, सारे अच्छे ग्रुप में काम किया था. और वो भी देते थे 15th को Okay. या 20th को. Okay. तो जो 3rd या 4th मंथ था उसमें आई वॉज वेटिंग फॉर द सैलरी एंड दे वाज लाइक हो रहा है यार, हो रहा है, बता रहा हूँ, चल रहा है. तो मैंने वाइफ को बोला यार मुझे जॉब नहीं करना यार. तो उसने बोला फिर क्या करना है. मैंने कहा यार यही करेंगे, रियल एस्टेट का काम करेंगे. तो शी सेड ओके डू इट. ना कुछ पूछा डिटेलिंग में, बिकॉज शी सेड डू इट. देन द नेक्स्ट डे आई वॉज कॉलिंग माई क्लाइंट्स एंड आई वॉज सेइंग सर आई हैव स्टार्टेड माई ओन फर्म, Wow. वुड यू लाइक टू डू विद मी, वुड यू लाइक टू बाई प्रॉपर्टी थ्रू मी. तो उनमें से 120 आई गेस 200 मैंने कॉल्स किए होंगे, 2-3 लोग इंटरेस्टेड निकल आए. Wow. सो 2-3 लोगों ने बोला ओके सेंड मी डिटेल्स, वी आर रेडी. I was like charged completely. I can do it immediately basis. Then I used to call
every day almost 300 to 400 clients. I Okay. used to have data. Okay. That is typical calling. Hi sir, my name is Brajesh Verma, so I am calling from this. And are you looking out for the property? कुछ लोग फोन रख देते थे, कुछ लोग बात कर देते थे. Correct. Right? And फिर उसमें see when you get into real estate business, you need to do lot of studies of the project. जिसमें मैं रात को आई रिमेंबर कि वी यूज टू लिव इन ए 1 BHK विच वॉज काइंड ऑफ 1 RK उस टाइम पे, छोटा था काफ़ी. तो जो आई गॉट ए पिक्चर ऑल्सो इफ आई शेयर इट विद यू. Yeah, sure. तो जो रूम में वाइफ सोती थी तो मैं किचन में आके रात में स्टडीज़ करता था. Okay. तो मुझे याद है एक टाइम पे 4 बज रहे थे एंड आई वाज कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे, क्योंकि रियल स्टेट पे आप अपना काम कर रहे हो, योर नॉलेज हैज़ टू बी कम्प्लीटली अपडेटेड, सब Right. कुछ पता होना चाहिए. Right. तो मैं सारा नोट्स बनाता था. अच्छा ओके 4 BHK, ओके लेआउट 10 by दिस सब कुछ. तो ये सारा कुछ ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने तक चलता रहा, कुछ हुआ नहीं उससे. देन आई वॉज लाइक कि हो रहा है. रियल स्टेट में सी इट्स अ बिजनेस विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज बड़े ट्रांजेक्शन ईजीली नहीं होते हैं. Right. तो 2-3 महीने तक मैं जब कर रहा था तो मैं वाइफ को बताता था. वो तो देख ही रही थी कि रात में भी बंदा जग रहा है, दिन में भी काम कर रहा है, तो कुछ तो कर रहा होगा, Correct. खाली नहीं बैठा होगा. तो 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ पोटेंशियल निकला नहीं. तो जो बाकी लोग हैं ना इधर उधर के, जो बाहर के लोग होते हैं, वो थोड़ा आपको बोलने लग जाते हैं कि यार आई थिंक दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू, कुछ नौकरी Right. ज्वाइन कर दो, Right. Yeah. जॉब कर दो. तो फिर आई वॉज रेडी, बट मुझे वाइफ से पूछना था. तो मैंने वाइफ से पूछा, मैंने कहा यार आई थिंक जॉब ज्वाइन कर दूँ क्या, कोई ऑफर आए तो. कह रही क्यों, कर तो रहे हो. तो उसने एक बात बोली विच वॉज सो ट्रू. उसने बोला जॉब में मैंने तुम्हें इससे ज़्यादा टेंशन में देखा है, तो तुम जो कर रहे हो वही करोगे. Wow. एंड दैट वॉज द मोमेंट. अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है. फिर मैं कॉल्स करता था उस टाइम पे. जब आप बिजनेस में नए होते ना, यू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग, सब कुछ ट्राई करते हो आप. आपको लगता है ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, बट अल्टीमेटली जब आप सीजन थोड़ा हो जाते हो तब आपको पता है अच्छा डायरेक्शन ये है. अदरवाइज आप हर डायरेक्शन में कोशिश करते रहते हो. Right. सो उस टाइम पे फिर नथिंग वॉज वर्किंग. देयर वॉज नो डील फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 months. Okay. वो टाइम बड़ा टफ था, बिकॉज जब आप जॉब से बिजनेस में स्विच करते हैं, फिक्स सैलरी आ रही है जी मंथली, जी जी. वो आपकी गई, सेविंग गई, रेंट कहाँ से आना है वो पता नहीं. एक आई मीन आई डोंट नो आई शुड से दिस नॉट, एक टाइम था जो मैं ज्वेलर के पास गया एंड मैंने वाइफ को नहीं बताया, बिकॉज अकाउंट में पैसे एकदम ख़त्म हो गए थे, 0 ऑलमोस्ट. तो मैं ज्वेलर के पास गया, भवानी नगर में ही एक ज्वेलर है मरोल में. जी. तो मैंने बोला कि यार इस रिंग का कितना मिलेगा, दिस रिंग का. तो पहले उसने मेरी शक्ल देखी, कह रहा क्या हुआ. मैं कहा आप बताओ ना. तो उसने बोला कि जाओ आप घर पे जाओ. तो आई थिंक वो समझ गया कि दिस गाय इज़ थोड़ा परेशान काइंड ऑफ. तो मैंने कहा नहीं आप बताओ ना कितना होगा. कह रहा मैं ले लूँगा, आप घर पे एक बार फिर से पूछ लो जाके. फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने वाइफ को ये बात बताई नहीं, बहुत दिन बाद बताई. दिस इज़ माई एंगेजमेंट रिंग बाय द वे. Okay. हाँ. Okay. तो दिस वॉज लिटिल नहीं मोर, Very emotional. वेरी इमोशनल एंड फिर इसको मैंने somehow I said ठीक है यार, वही डेली रूटीन करते हैं और कुछ ऑप्शन अपने पास है नहीं. एक कॉल मैंने की और एक NRI क्लाइंट था US में. Okay. मैंने मैसेज ड्रॉप किया था समथिंग, ही कॉल्ड मी बैक, ब्रिजेश आई वांट ए प्रॉपर्टी इन पनवेल, कैन यू हेल्प मी. Okay. मैं यस आई कैन हेल्प यू सर. मैंने डिटेल भेजा, ही आस्क्ड फॉर द लेआउट एंड वी वर डिस्कसिंग एवरीथिंग, प्राइसिंग कितना होगा, इतना होगा एंड ऑल, एंड वी क्लोज द डील. Wow. एंड दैट वॉज द मोमेंट आई वॉज जस्ट सेटिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि वो 9 महीने का पीरियड जी. विदाउट सैलरी, विदाउट पेमेंट, पैसा कहाँ से आना है वो भी नहीं. इन दिस पीरियड एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि एज आई सेड आई वॉज इनटू एक्टिंग. मुझे पहले कभी एक्टिंग में काम नहीं मिलता था.
उस टाइम पे मुझे बहुत काम मिलने लगा. ओके. तो एटलीस्ट 1 डे 2 डे मतलब बालाजी के तो कोई भी शो जो मैंने छोड़ा नहीं होगा. ओके. आई थिंक कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, अनुपमा, ये वो जो भी आप शो देखोगे. ओके. सो उस टाइम पे क्योंकि घर तो चला नहीं था कुछ ना जी, कुछ जी. करके, तो मैंने सारे किए. कास्टिंग डायरेक्टर दे यूज टू कॉल मी कि अच्छा ये रोल है. मैं कहा रोल छोड़ो पेमेंट कितना है? हाँ. इतना पेमेंट है, ठीक है मैं आ रहा हूँ. तो ये करके मैं कंटिन्यूस करने लगा, जिससे कम से कम एक रेंटल निकलने लगा मेरा. ओके. और वो भी ज़्यादा नहीं मिल रहा था क्योंकि कोविड में हर कोई फ़ायदा उठा रहा था राइट. कि भाई इसको भी ज़रूरत है तो ये भी कम में करेगा. तो उस टाइम पे फिर मैंने ये सब किया. और जब वो डील वगैरह हो गई, फिर उसका जो पेमेंट आया, फिर मेरी वाइफ बड़ी खुश हो गई कि यार, क्योंकि उसने वो मेहनत देखी थी. करेक्ट. जो रात को जग के सी, अभी मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, आई गॉट ए टीम ऑफ 8 पीपल. वाओ. वी फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट, वी फोकस ऑन स्टडी, एंड दे आर लाइक हाँ सर सब देख लिया. देन आई आस्क क्वेश्चंस. अच्छा व्हाट इज द प्लॉट साइज, विच ऑल स्कूल्स आर नियर बाई, हॉस्पिटल्स कौन से हैं आसपास, लेआउट में क्या है, कारपेट क्या है, पीएसएफ क्या है, कितना स्टोरी है, सब कुछ. सर वो तो पता नहीं. तो बेटा स्टडी करना पड़ता है. जो कॉलेज में स्कूल में करते थे ना बैठ के, वो स्टडी करना पड़ता है. उतना नॉलेज आपको चाहिए बिकॉज क्लाइंट कुछ भी पूछेगा. एंड अगर क्लाइंट, सी रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है, अगर किसी क्लाइंट ने पूछा ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं बताया, ही विल स्विच टू अदर करेक्ट ब्रोकर. राइट. राइट. सो दिस इज द रीज़न. तो उसके बाद जो जर्नी है थोड़ी स्टार्ट हो गई. तो वो फर्स्ट डील दैट वाज वेरी 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 आई मीन इम्पॉर्टेंट फॉर मी. Wow. So, to all our viewers who are new and who don't understand real estate business, can you briefly explain what's your model? Are you like a broker? Are you a channel partner? Or like what does your firm exactly do? So I have closed 170 crore of inventory with zero brokerage. Okay. How? Yeah. The reason is we were doing only new projects. We used to sign with the builder Okay. that we will give you that kind of business. इतना business हम आपको देंगे और आप हमें इतना पेमेंट देंगे. मैं कस्टमर से कोई पेमेंट नहीं दूंगा. Okay. माई फर्स्ट आई मीन प्रायोरिटी वॉज कि मैं कस्टमर से यार पेमेंट नहीं दूंगा. इन दैट केस वी हैव सोल्ड मल्टीपल लेट्स से 70-90 crore in Kanakia, in Lodha, in these different projects. When I used to get a lead of resale, used apartment, I used to pass on just like a courtesy. For example, Okay. Yeah. So why? That is the reason I can say, sir, it is 100% zero brokerage company. Okay. As far as I remember, in 170 crore, almost 165 crore is zero brokerage. I guess 5 crore is just because one of my team member did through someone else. Okay. There are different kind of people, different brokers, and they do via. Okay. Otherwise, we were doing completely zero brokerage. Okay. So these are different terminology. But ultimately, जैसा मैंने बोला कि this is zero brokerage kind of thing. तो we consider as a real estate channel partner और real estate consultant. Okay. तो पहले रियल एस्टेट में क्या होता था, 2017 से पहले अगर आपको बताओ, रेरा नहीं था जी. तो जो भी डील्स वगैरह होती थी उस पर कोई कमांड करने वाला नहीं था. सो ब्रोकर्स यहाँ से क्लाइंट को लेके जाते थे, वहाँ डील करवाते थे, वो बिल्डर ने प्रोजेक्ट रोक दिया, दूसरे प्रोजेक्ट पे चले गए, तो बड़ा अनमैनेज था. बट रेरा के आने के बाद काफ़ी चीज़ें मैनेज हो गई हैं. अब इन्होंने एक रियल एस्टेट का जो एजेंट्स का एक एग्ज़ाम रखा हुआ है. ओके. तो अब हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है 2 हफ्ते की. उसके बाद एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, वो क्वालिफाई करना पड़ता है. उसके बाद फिर हम लोग को वो सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो लाइसेंस मिलता है, तब हम लोग काम करवाते हैं. सो नाउ यू कैन से दिस, वी आर द चैनल पार्टनर एंड द रियल एस्टेट कंसल्टेंट. Okay. Yes. And how did you decide to venture into this line of business instead of being a broker? Because resale segment is not, it's very unmanaged. Okay. You imagine, for example, if I am a resale broker, if you are a client, and then you are calling me, okay, you want a 3 BHK, I need to talk to different people. मुझे 10 अलग अलग ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी कि वो उस तरीके की इन्वेंट्री है क्या, उस तरीके की इन्वेंट्री है क्या. और ब्रोकर्स में भी दे आर नॉट
वेरी वेल प्रोफेशनल, हम्म, तो वो भी अपना टाइम लेके बताएंगे कि हाँ होगा, बताते हैं एंड ऑल। फिर उसमें वो कीज़ मैनेज करेंगे, फिर उसमें वो दिखाएंगे कीज़ आई है नहीं आई है, फिर उसके बाद जो पेमेंट होगा। जो मेन था, सी आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो जो मेन प्रॉब्लम थी कस्टमर से जो पैसा देना है ना एंड में, वो मुझे नहीं चाहिए था। ओके, तो मैंने आई थिंक फर्स्ट उसमें ही बोल दिया था, जो मेरा एक टीम में सबसे पहले था, मैंने बोला ये काम मुझे नहीं करना है, ओके, बिकॉज डील होने के बाद देन आई नीड टू आस्क टू माई कस्टमर सर मेरा पेमेंट। इससे बेटर हम कॉर्पोरेट वाला मॉडल यूज़ करते हैं ना, तो इस वजह से वो वाला हमने पैटर्न नहीं यूज़ किया। तो आपके मॉडल में एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क, लाइक टू आवर व्यूअर्स कैन यू सिंपली एक्सप्लेन कि आप बिल्डर्स को अप्रोच कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल इफ यू सेल 1 CR फ्लैट फॉर अ बिल्डर, व्हाट परसेंटेज डज द बिल्डर ऑफर यू एंड हाउ डू यू मैच द बिल्डर एंड द क्लाइंट? तो एज ऑफ नाउ लेट्स से लोधा इज Okay. a biggest developer. ओके, I've got my office in Chandivali. ओके, Lodha team or someone from their team, they will approach us. ओके, They will come to our office. They will give a presentation that this kind of project we are launching. Okay. So you need to work with us. ओके, We go through the complete details. We understand what are the details of the project completely. Then, if it is good, if I am convinced, then we sign a contract. ओके, Yeah. They offer different kind of contract, 25 CR, 50 CR, 100 CR kind of. वर्थ इन्वेंट्री आफ्टर सेल? Yes. ओके, जो मेरी कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू दैट, मुझे पता है कि मैं मार्केटिंग पे अगर इतना खर्चा करूंगा, इतनी लीड्स आएंगी, तो मैं कितना क्लोज कर सकता हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आई साइन दैट डील। ओके, तो जो मैंने लेट्स से 25 करोड़ का अगर मैंने साइन किया, जी, तो अगर मुझे 1% मिल रहा है हर एक डील पे, तो वो 25 का अगर मेरा पूरा हो गया, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो वो 25 CR का अगर मेरा पूरा हो गया, तो माइट भी मुझे 2% मिलेगा उस पर। ओके, सो अराउंड इफ यू क्लोज अराउंड 25 तो 50 lakhs मिलेगा फॉर एग्जांपल। ओके, ओके, तो ये अलग अलग है, LNT का अलग होता है, Okay. कहीं और पे अलग होता है। कई बार जो ऐसे कुछ डेवलपर हैं, दे आर नॉट नोन, और हम लोग को पता है कि शायद उनका प्रोजेक्ट रुक सकता है या कुछ भी है, फाइनेंस इश्यूज हैं, दे ऑफर 3%, 4%, ओके, कि सर आप आओ तो एंड यू डू इट एंड ब्रोकरेज बहुत अच्छा है एंड ऑल, बट वी कैन सेल दैट ओके, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले मुझे कन्विंस होना पड़ेगा प्रोजेक्ट जी। से, देन ओनली आई कैन कन्विंस यू। So this is the reason that we work with one of the top developer of the industry. and this percentage ranges from 2 to 3% you said? So sometimes it goes to 4% also, To okay, depending on the builder. okay, तो अगर कोई ऐसा बिल्डर है जो एकदम नोन नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं बताऊंगा, जी, अभी भी एक डेवलपर पवई में ही है, नियर बाय RA, दे वर सेइंग सर 4% का है, आप बस करो। ओके, अब आई एम नॉट कन्विंस विद द लोकेशन, आई एम नॉट कन्विंस विद द, आई मीन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, जो उसका लेआउट है, जो डेवलपर है उन्होंने पहले एक बनाया था 15 साल पहले, उसके बाद अब बना रहे हैं, फाइनेंस, तो फिर वो प्रोजेक्ट हम लोग नहीं करते हैं। ओके, बट ये 2% तो मिनिमम मिलता ही है? 2% मिनिमम है, कहीं कहीं पे 1% है। जैसे एक दो डेवलपर हैं, ओके, दे आर लाइक कि आपको करना है करो, हम 1% ही देंगे। अच्छा, हाँ, तो फिर हम लोग उनके साथ, फिर देखो मेरा मार्केटिंग का खर्चा है, सिंपल सा कैलकुलेशन है बिजनेस का, जी, कि मुझे जितना बिजनेस में लगाना है उतना मुझे एटलीस्ट उससे ज़्यादा तो निकालना ही ऑफ निकालना है। कोर्स, यस, तो अगर कोई एक्स प्रोजेक्ट है, मुझे एक्स प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी है, कहाँ पे करनी होगी? मैजिक ब्रिक्स, 99 हाउसिंग, उसके बाद मेटा, गूगल पे, हर जी, जगह करना होगा, तो मेरा भी खर्चा जाएगा। जी, अब अगर मुझे लगता है मेरा इतना खर्चा हो गया और मेरा रिटर्न इस पे नहीं मिल रहा, तो फिर मैं उस पर काम नहीं करता। ओके, जी, ओके। और ये तो अब थोड़े अभी एस्टैब्लिश हो गए, तो आप बिल्डर्स आर रीचिंग आउट टू यू, बट जब आप इनिशियली चालू किए एंड यू गॉट योर फर्स्ट पनवेल क्लाइंट एंड यू क्लोज दैट पनवेल प्रॉपर्टी, आई मीन, so how did you initially approach the developers, because initially they will not be knowing Pretty Home Advisory? yes, so that was again a challenge, because आप नए हो और आपको कोई नहीं जानता है। जी, अभी तो चलो आप प्रिटी होम्स बोलते हो तो वो बोलते हैं कि हाँ आप या तो हम आ जा रहे हैं या फिर आप आ जाओ, जो भी है। उस टाइम पे आप बोलते थे तो ब्रजेश वर्मा, क्योंकि कंपनी का नाम भी जी। हम लोगों ने उस टाइम पे जी। डिसाइड नहीं किया था। अच्छा ब्रजेश वर्मा, हाँ क्या चाहिए बताओ, तो उनको पता है कि भाई सीरियस नहीं, कोई भी उठ के शायद आ सकता है, वो मांग रहा होगा, तो उनको बताते थे कि भाई मेरे पास एक क्लाइंट है, दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड, ओके ठीक है दे दो प्रोजेक्ट डिटेल।
तो उस टाइम पे जाके अप्रोच करना पड़ता था. जैसे मुझे याद है मैं पवई भी आया था और चांदीवली वगैरह भी गया था. तो वॉक कर के मैं प्रोजेक्ट पता करता था ये है, और वॉक कर के मैं विजिट करता था. फिर मैं जाता था तो वहाँ पे बैठे रहते थे. अगर मैं बोलता था कि सो आई एम ए चैनल पार्टनर एंड आई वांट प्रोजेक्ट डिटेल्स, आई वांट प्रोजेक्ट इन्फो, तो वो वेट कराते थे आधे घंटे 1 घंटे चिल मार के. फिर उसके बाद वो आता था कोई बंदा, थोड़ा समझा देता था और चला जाता था. तो दे डोंट टेक यू वेरी सीरियसली व्हेन यू आर न्यू. Okay. But then how did you crack your first developer? Like with whom did you crack your first deal with? It was with Kaltar. Okay, so you went and told them that you want to be a channel partner with them, and Yes. So I just called them. I've got a client from US Okay. and he would like to invest in a 2 BHK okay, and I need the detail. They forwarded me the detail and we shared all information. We had a lot of discussion because US client tha, so we used to discuss at 2 o'clock at night. okay, तो आई रिमेंबर वाइफ सो रही होती थी और मैं अपने किचन में मेरा किचन मेरा ऑफिस था उस टाइम पे. तो मैं अपने किचन में डिस्कस कर रहा होता था कि सर प्राइस इतना है, नहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लाइंट उधर से बोलते थे कि नहीं यार ब्रजेश थोड़ा तो कम करना पड़ेगा. मैं बोलता था ठीक है. तो वो जो मैनेजर था वो भी रात में 2 बजे, okay, वी ऑल 2 बजे हम सारा डिस्कस करते थे. फिर 2-3 दिन डिस्कशन के बाद वो डील क्लोज हो गई थी. okay. Very nice. तो आप मुंबई में I think which all areas have you covered so far? So my micro market is Powai, Chandivali, Andheri. Okay, When I started my journey, in fact, this is for all people who want to be real estate agent. yeah, When you get into real estate, you think you can do everything. You can say entire Mumbai or whatever the city. But ऐसा होता नहीं है because you have to be very very specific. okay, Because in my initial days, if someone used to call me, I want a property in Bandra, I used to take my bike and just I used to go to Bandra. अच्छा, Someone used to call me, यार मेरे को मीरा रोड चाहिए, मैं मीरा रोड बाइक उठा के चला जाता था अच्छा, कि मुझे कहीं से तो कोई डील मिल जाए. right, फिर जब वो 8-9 महीने का, मैंने आपको बताया कि 8 से 9 महीने तक कोई डील नहीं हुआ. correct, देन आई वॉज डिस्कसिंग विद वन ऑफ द ब्रोकर, आई थिंक ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए वेरी ओल्ड ब्रोकर. तो मैंने उससे पूछा कि यार भाई ये तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है बिकॉज इतनी सारी मेरे विजिट्स वगैरह हो गए. तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो. तो मैंने कहा यार मैं तो सब कर रहा हूँ. कह रहा दिस इज़ द प्रॉब्लम कि सब करने पे नहीं कर पाओगे. okay, देन आई थॉट ओके आई हैव टू बी वेरी मच, आई मीन आई हैव टू बी द किंग ऑफ वन मार्केट. okay, देन आई डिसाइडेड पवई. okay, Powai, there are 3-4 projects. I was completely going through in details, सब कुछ समझ रहा था मैं. फिर मैंने चांदीवली पकड़ा, फिर मैंने अंधेरी. तो ये 3 ही मार्केट में मैंने पूरा जितना भी 170 करोड़ का इन्वेंट्री सेल किया वो इस मार्केट में ही सेल किया. रीज़न इज सी बिजनेस में इट इज़ नॉट अबाउट इन माई बिजनेस. आई थिंक हर बिजनेस में यही होता है. correct, अगर आप पूरा सब कुछ करने जाओगे ना, Yeah. या तो आपके पास टीम इतनी एफिशिएंट हो या मैन पावर इतना ज़्यादा हो तो आप कर पाओ. right, बट अगर आप अकेले हो तो आपको छोटे छोटे एरिया से ही ग्रिप बना के आगे चलना पड़ेगा. right. तो वही मैंने किया कि जब ग्रिप बनाया तब जाके आगे Right, no, बढ़े. well said. And ये माइक्रो मार्केट्स में आपने जो सर्विस दिया है, आप बायर्स के माइंडसेट कैसा है डिफरेंट एरियाज में? जैसे कि पवई का बायर माइंडसेट कैसा रहता है, चांदीवली का कैसा रहता है, अंधेरी का कैसा रहता है? सी बायर का मार्केट, बायर का माइंडसेट अगर बोलेंगे, इट्स देर आर जस्ट 2 माइंडसेट. ओके, वन इज़ इन्वेस्टर, वन इज़ एंड यूज, दैट्स इट. बायर का माइंडसेट आपको चाहे एरिया कोई भी आप चेंज कर दो, बायर का माइंडसेट अलग नहीं है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एंड यूज पर्पज से आ रहा है, कोई घर खरीदने आ रहा है, साउथ मुंबई में भी आएगा तो भी वो सेम माइंडसेट से आएगा. उसको वास्तु अच्छा चाहिए, उसको वेंटिलेशन चाहिए, उसको कनेक्टिविटी चाहिए, उसको स्कूल हॉस्पिटल चाहिए, सब कुछ सेम है. केवल बजट ज़्यादा है, उसकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है. जी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि सबका जो परचेसिंग पावर रहता है डिफरेंट एरियाज में कैसे कैसे रहता है. Now let's say Powai. Powai is a market wherein people, if they are looking for 2 BHK, they know they have to pay at least 3 CR, Right. 2.5 to 3 CR minimum. If they are going to Chandivali location, they know they will start from 1.5 to 2 CR. ओके, If they are in Andheri, it's 2 CR. ओके, If they are in, let's say, they're in South Mumbai. As of now, we are doing South Mumbai also. ओके, I've got a team of people. South Mumbai, even if you talk to any client, their budget is 10 CR, 15 CR, 20 Okay. CR.
Recently, I visited a property in Valkeshwar. It was at 40 CR. It was a beautiful property, like 3,000 carpet, and Valkeshwar is sea view completely. Yeah. तो प्राइसिंग इस तरीके का अलग अलग है. ओके, तो बायर का माइंडसेट बेसिकली परचेसिंग पावर चेंज होता रहता है एज पर एरिया. दे आर प्रिपेयर्ड टू पे दैट मच मोर. ओके. एंड एज आई सेड, सेकंड इज इन्वेस्टर. इन्वेस्टर अगर आपका होगा, देयर आर, आई हैव गॉट मल्टीपल इन्वेस्टर, दे हैव इन्वेस्टेड थ्रू मी अगेन एंड अगेन. रीजन इज दे वांट ROI. Investor, can you elaborate on this? Investor as in people who would like to invest in real estate Okay. to get a good ROI. How does this work exactly? So for example, if someone is interested in investing in a under construction property, Okay. he is coming with a budget of, यार ब्रजेश, I have got 2 CR, could you suggest me some nice project? तो मैंने एक प्रोजेक्ट बता दिया. I need to tell the project knowledge completely, brand value, appreciation based on past. ये सब पूरा उसको अगर सजेस्ट एक्सप्लेन किया तो कि लेट्स से इफ यू आर बाइंग एट 2 CR as of now and after 3 year the property you will be getting, you can easily sell approx 2.5 or 2.7 CR, which I have given to many of my clients. They say okay, 70 to 80 lakh rupees of appreciation if they are getting in this period, plus they can put this property on rent. So it's a nice investment, I guess. Okay. So they are coming with the mindset of investment only. Okay. Or one person, they're coming, they want to buy a ready to move in option. मुझे पेमेंट करना है completely, मुझे कीज देनी है और रेंट पे देना है. Okay. Because in Mumbai, rental business is very good. Okay. One of my client, he is having 25 to 30 apartments. Okay. He recently bought 2 offices through me. I will not name. No problem. I will not take his name. Yeah. But he does only rental business. Okay. He has one person who manages all rental in different areas. Because 2 BHK in Powai, bare minimum if you want, it is 90,000. Minimum, I am saying. Otherwise, it is 120, 130, 150 for 2 BHK. So rental business is nice. So if investor is coming, either they want a good ROI return on capital appreciation or on rental. Okay. Yeah. And recently, even DLF Builders, very famous, they have entered Andheri West. So, how do you think when a builder like of their stature enters such area, how does it impact the pricing? So to be honest, I was working for DLF completely. Okay. Because before coming to Mumbai, I was in Delhi, NCR. Okay. So I know what DLF is. Okay. I have seen Cyber City, Gurgaon and Okay. everything, जो DLF ने proper बनाया. So I was very much excited कि DLF is coming and मैं तो kill कर दूंगा. I'll do it. We did a lot of marketing and everything. So far we could sell only 2 units there. Because when they came to Mumbai, first उन्होंने JW Marriott में हमारा meeting रखा था. So they explained everything कि within a week we will sell out. अच्छा. हाँ. तो I was like, I think Mumbai, come on यार, they are coming from Delhi, इनको मुंबई मार्केट पता नहीं अभी, यहाँ पे टाइम लग जाता है. तो बट ठीक है, वो हमेशा उसी पे थे कि अगर आपके क्लाइंट्स को बताओ, बिकॉज 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं, 1 हफ्ते में या 5-6 दिन में विल सेल आउट. हाँ, अपने पास यूनिट नहीं मिलेगा. ठीक है, वो डिस्कशन हुआ, मैंने मार्केटिंग किया, 1-2 क्लाइंट क्लोज हुए. और जो लास्ट उनका CP मीट लॉन्च मीटिंग था, वो जियो में था, जियो वर्ल्ड सेंटर में, और तब उन्होंने लॉन्च किया. अभी परसों मेरे पास एक क्लाइंट है UAE के, ही मैसेज मी, ब्रजेश मेरे को एक 3 BHK चाहिए DLF में, सोल्ड आउट. सो देर इज़, यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 240 यूनिट्स, सॉरी 400 यूनिट 1 हफ्ते में पूरा सेल आउट हो गया. बट इज इट ट्रू? ऐसे इतने क्विकली कैसे हो रहा है? मतलब वो मैं भी सरप्राइज था. बट इनका जो DLF का नेटवर्क है, DLF इज़ अ बिग कंपनी. जो दिल्ली मार्केट है, अगर आप पूछोगे किसी से, तो दिल्ली मार्केट में DLF के नाम पे बिकता है. मुंबई में अपार्टमेंट विदाउट शोइंग आप बेच नहीं सकते हो. करेक्ट. विच इज़ माई एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं होगा कि सर आप एक काम करो, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, अपार्टमेंट हो गया आपका. दिल्ली में ऐसा होता है. ओके. देर आर मल्टीपल पीपल, उनको बस फ़ोन पे सर DLF का प्रोजेक्ट आया, ठीक है 2 ले लो, एक काम करो. तो ये रीज़न सबसे बड़ा था. तो उनका जो इनफैक्ट यहाँ से भी उन्होंने ऑलमोस्ट 600 या 700 से ज़्यादा ही कुछ एजेंट्स को वो लोग गुड़गांव लेके गए थे. पूरा उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सब कुछ दिखाया.
और वहाँ से भी ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा ब्रोकर यहाँ पे आए थे। ओके। तो उनकी बैंगलोर टीम, उनकी NRI टीम, इन सब ने काम किया और उन्होंने सेल आउट कर दिया। बिकॉज सी अगर यूनिट होती तो परसों वाला केस मैंने आपको बताया, जी जी। क्लाइंट इज़ वेरी कीन, ब्रजेश एक यूनिट तो मिलेगा, मैंने कहा सर नहीं मिलेगा। ओके। तो सेल आउट है तो है। And in your personal experience in the real estate industry, who do you think are the most reliable builders across Mumbai and also across India? We work with only reliable, हाँ. So I can tell you better हाँ. because जहाँ पे हमें रेड फ्लैग दिखता है, we don't work. मैं अपनी Okay. टीम को ही बोलता हूँ कि no. We have one policy. See every single project of the area. अगर आप पवई में हैं, चांदीवली में हैं, अंधेरी में, एक एक प्रोजेक्ट देखो, छोटे से छोटा देखो, भले ही बेचना है नहीं बेचना है, बट हमें करना वही है जिसके बारे में हमें पता है। उसका एक रीज़न है कि जब आप क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो क्लाइंट आपको बोलते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट भी तो है, वो भी है। अब अगर एज ए सेल्स मैन आपको नहीं पता है तो यू विल स्टार्ट कि अच्छा वो प्रोजेक्ट आई थिंक सर आई डोंट नो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सब कुछ देखो, एक एक प्रोजेक्ट देखो। मैं खुद देखता हूँ जाके। नाउ कमिंग टू रिलायबल, मुंबई की बात करें तो ऑफकोर्स हीरानंदानी, ओके, ऑफकोर्स लोधा, गोदरेज, महिंद्रा। ये सब तो बड़े ब्रांड हैं। ओके, बड़े ब्रांड में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल सा रीज़न है, अगर प्रोजेक्ट आपका कहीं पे स्टक भी हुआ तो भी पैसा आपका स्टक नहीं होगा। बिकॉज आपको पता होगा कि आफ्टर एरा जो भी पेमेंट कस्टमर करता है उसका 30% केवल जाता है बिल्डर के अकाउंट में, 70% जाता है एस्क्रो अकाउंट में। ओके, एस्क्रो अकाउंट जो गवर्नमेंट है वो कभी भी एक्सेस करती है, उसका जो एक्सेस है, कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट के पास है। ओके, तो आज के टाइम पे अगर कोई प्रोजेक्ट रुक भी गया और कस्टमर ने पैसा दे भी दिया है तो भी मुंबई में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो किसी NCLT में जाएगा, किसी ना किसी बिल्डर को अपॉइंट करेगा और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा। ओके। तो ये तो मैंने आपको बताया जो बड़े ब्रांड हैं, बट अभी भी कुछ छोटे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत रिलायबल हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, एक गुरु कृपा करके है, ओके, बहुत छोटा बिल्डर है, मार्टा डेवलपमेंट करता है, बट अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे 2 साल में डिलीवर करके देता है। ओके, ना कभी पेमेंट, ना कभी स्टक होगा, ना कभी कंस्ट्रक्शन इश्यूज आएगा, कुछ नहीं आएगा। प्राइसिंग इक्वली कम होता है। ऑफकोर्स जो ब्रांड होता है, ब्रांड का थोड़ा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, तो ब्रांड वाली प्रॉपर्टीज थोड़ी महंगी होती हैं, नॉन ब्रांड वाली थोड़ी सी सस्ती होती हैं। ओके, ओके। एंड से कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है एंड दे वांट टू परचेज एन अपार्टमेंट इन मुंबई, व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दे शुड कीप इन माइंड? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो आई थिंक सबसे पहले लोकेशन है, ओके, ब्रांड है और प्राइस है। ओके, तो आई थिंक पूरा सब कुछ इसी के आसपास घूमता है। अगर थोड़ा डिटेल में मैं बताऊं तो लोकेशन मुंबई में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बोलता है कि मेरा ऑफिस मेरा ऑफिस BKC में, लेट्स से अंधेरी में, और मुझे सस्ती प्रॉपर्टी चाहिए, मैं तो वसई में रह लूँगा या मैं तो थाने वाने में कहीं रह लूँगा, तो उसको ट्रैवल कितना करना पड़ेगा आपको पता ही है जी। ट्रैफिक कितना होगा, लोकल ट्रेन का ये सब ट्रैफिक, तो ये वाला प्रॉब्लम है। तो अगर आपको भले ही छोटा सा, उससे थोड़ा कम अपार्टमेंट मिल रहा है, उससे थोड़ा छोटा मिल रहा है, बट अगर कनेक्टिविटी मिल रही है कि चलो मेट्रो के आसपास है या थोड़ा सा आप एरियाज़ के पास में हो, तो यू शुड गो फॉर दैट। ओके। द सेकेंड थिंग, ब्रांड मैंने बोला, अगर आप कोई रेडी टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दे रहे हो तो ब्रांड, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर ब्रांड नहीं होगा ना तो आपको पीसफुल होके नींद नहीं आएगा प्रॉपर, सच बताऊँ तो। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सस्ता मिल रहा है। मेरे क्लाइंट थे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, नाम मैं भूल गया, इट वाज जब मैंने स्टार्ट किया था तब की बात थी आई थिंक। तो उन्होंने मेरे थ्रू काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देखी, सब कुछ दिखा दिया मैंने, बिकॉज मुझे तो डील चाहिए था उस टाइम पे। एक प्रॉपर्टी मैंने नहीं दिखाया जो इसी एरिया में था, चांदीवली में, और तो उन्होंने वाया कहीं से देख लिया और बोले यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो 1.5 करोड़ में मिल रहा है, 750 कारपेट। तो मैंने कहा सर वो आपको ओनर के बारे में पता है क्या? ओनर बैंकरप्ट है उसका। अच्छा। कह रहे यार तुमने नहीं दिखाया तो तुम बता रहे हो। मैं कहा सर मेरे को पता है, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इन दैट। तो बोलते हैं कि नहीं यार आई थिंक
किचन देखा है उनका, किचन कितना बड़ा है, और उनका रूम साइजेज ऑलमोस्ट 10x15 का रूम साइजेज है। मैं सर मत करो प्लीज़, बिकॉज मुझे पता है। और उन्होंने सुना नहीं। देन ही कॉल्ड मी ब्रिजेश, मैंने ही उनको फॉलो अप किया। ही सेड ब्रिजेश आई हैव क्लोज इन दिस प्रोजेक्ट। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। 2-3 महीने बाद कॉल आया, ब्रिजेश यार ये लोग तो अपार्टमेंट दे ही नहीं रहे हैं, ये लोग तो बोल रहे थे रेडी टू मूव इन है, और इनका तो वो जो फायर वाला जो पाइप पूरा होता है वो भी नहीं आया, ओसी भी नहीं आ रहा है। सर मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मेरे ही एरिया का था। तो मैंने क्लियर अपनी टीम को बोल के रखा है कि वी आर इनटू सेलिंग बिजनेस, बट वी कांट सेल एवरीथिंग। I have told everyone in my team that first of all you need to do proper R&D, then only you can promote to your client. सब कुछ नहीं बेच सकते हो आप. So this is the reason we have to be very much selective. आप कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो when you're looking when you're scouting for properties? आप क्या exactly चेक करते हो कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है तो I'll propose it to my client, ये गलत है तो ये क्लियर कट रेड फ्लैग है, हम अवॉइड करेंगे एंड क्लाइंट को ये सजेस्ट नहीं करेंगे. तो आपका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या रहता है? एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस मैं फॉलो करता हूँ कि अगर कोई क्लाइंट मुझे बोलता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए, ओके, तो लेट्स से इफ़ आई नीड टू प्रेजेंट 5 ऑप्शंस, तो सबसे पहले मैं ब्रांड ही प्रपोज करूँगा. ओके, आई मीन इट इज़ ऑन प्रायोरिटी कि मैं बोलूँगा सर ये आपके पास 5 बड़े ब्रांड है. फिर अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे और भी ऑप्शन चाहिए, तो मैं जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं ब्रांड वो प्रपोज करूँगा. देन इफ़ दे आस्क कि ब्रजेश अब क्या करना है, मेरे को तो सही लग रहा है, देन आई से सर फर्स्ट वाला क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है. ओके, ऐसा नहीं कि मुझे डाउट है वो सेकंड वाले पे, बट जस्ट बिकॉज ब्रांड, बिकॉज यू प्ले सेफ, यू सिट पीसफुली. सेकेंड थिंग, इवन इफ इट इज़ नॉट ए ब्रांड, देन वी चेक रेरा डिटेल्स कम्प्लीटली. आज के टाइम पे थैंक गॉड रेरा, लोगों को रेरा का जो रेरा पूरा डेवलप हुआ है, बिकॉज वी हैव डन कंप्लीट ट्रेनिंग. 2 हफ्ते की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम लोग के एग्ज़ाम होते हैं, और एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होता है, सेंटर पड़ता है, जाके देना होता है. okay. उसमें पास फेल होते हैं, उसमें हम लोग का जो सर्टिफिकेट है वो आता है, राइट. तो उस रेरा की ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ में आया कि रेरा कितना कस्टमर फ्रेंडली है. okay. पहले रेरा क्यों बनाया, क्योंकि पहले क्या था, बिल्डर कुछ भी करते थे, कस्टमर से पैसा लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कहीं और लगा दिया, बिल्डर प्रोजेक्ट रोक दिया, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट कर दिया, कस्टमर फंस गया, उसको देखने वाला कोई नहीं था. आज के टाइम पे अगर आप पूरा स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रेरा के काफ़ी क्लॉज हैं वो कस्टमर के फेवर में है. बिल्डर के को उन्होंने हर तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ लेआउट में चेंज भी करना है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और बिक गई है काफ़ी हद तक, तो भी आपको ऑलमोस्ट 70% लोगों से साइन लेना पड़ेगा, तब जाके आप चेंज कर पाओगे. आप ऐसे ही चेंज नहीं कर पाओगे. तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं कस्टमर के फेवर में. okay. तो एक तो आप ब्रांड देख लो, दूसरा आप रेरा पे सारी डिटेल देख लो, एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लो okay. कि जो कंपनी के फाइनेंसेस हैं वो कैसे हैं, या फिर पास्ट रिकॉर्ड कैसा है. जैसे मैंने आपको गुरु कृपा का बताया, आई एम नॉट प्रमोटिंग गुरु कृपा, जी 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 बट आई एम कन्विंस, आई थिंक इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ जी. तो छोटा डेवलपर बट टाइम पे डिलीवरी, टाइम पे कस्टमर को अटेंड करना, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस. तो दिस इज़ नाइस, और प्राइस सबसे कम. तो इस तरीके के ऐसे कई डेवलपर हैं okay. जो प्रेफर कर सकते हैं. Okay, and what are the common financial mistakes which first-time buyers do when they buy a house? There are, I think there are multiple mistakes. You can state a So few. one is, I've seen few people wherein they invest or they buy beyond your capacity. Okay. For example, अगर आपको अपने कैलकुलेशन पता है कि मैं कितने की EMI दे सकता हूँ, मेरे पास कितना सेल्फ फंडिंग है, क्या मैं 2 BHK अफोर्ड कर सकता हूँ इसमें, ठीक है. बट जस्ट बिकॉज आप 2 BHK नहीं, यार आई थिंक घर पे कोई आएगा, थोड़ा घर छोटा लगेगा, 3 BHK देते हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपने अगर एक बड़ा डिसीजन दे दिया कि यार EMI तो पे ही कर देंगे ना, मे बी आपको ज़रूरत नहीं है 3 BHK की, राइट. केवल 2 बच्चे और कपल हैं तो शायद उनको 2 BHK इज़ फाइन. अगर उन्होंने 3 BHK दे दिया तो वो जो EMI का बर्डन होता है दैट इज़ गोइंग टू बी एवरी मंथ, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपके
पर्सनल खर्चे, वो सब धीमे धीमे करके अफेक्ट होते हैं. तो इट इज़ बेटर कि कहते हैं ना कि घर खरीदना, बड़ा घर खरीदो चाहे छोटा, शांति से पीसफुल होकर उसमें रह लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट. तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ओके. जो मैं अपने कस्टमर्स को बता देता हूँ. ओके. इट हैज़ हैपेंड मैनी टाइम कि क्लाइंट वाज डिस्कसिंग, ब्रजेश यार 2-3 में मेरे को बहुत स्ट्रेच करना पड़ रहा है. मैं बोलता हूँ सर मत करो, ओके. सब चीज़ डोंट डू. आपके 2-3 के बीच में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला. ओके. कई बार ऐसा हुआ है. तो दे से यार कि यार ब्रजेश नाइस है, इट वॉज ए जेन्युइन एडवाइस. सर मुझे पता है, मैंने अभी घर खरीदा है, मैं खुद कैपेसिटी से ऊपर जाके नहीं बोलूँगा आपको. ओके. दे अप्रिशिएट ऑल्सो. Okay. And lot of our viewers consist of entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. So for someone who's watching this podcast and wants to become a channel partner like you in the real estate space, what should be their starting point? वो चालू कैसे करे? Starting point is knowledge. Okay. I always say knowledge. जब भी लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर करते हैं वो क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं. क्लाइंट्स के पीछे मत भागो, क्लाइंट आ जाएंगे. Okay. मार्केटिंग ऐसा टूल है, वो आज नहीं तो कल आप करोगे ही करोगे. सोशल मीडिया इतना है, वीडियोस वगैरह बना के या फिर मैजिक ब्रिक्स 99 इधर उधर पोस्टिंग करके आप क्लाइंट लेके आ जाओगे. Okay. क्लाइंट आने के बाद क्या आप उनको कैटर कर पाओगे, उसके लिए है नॉलेज. Okay. जो रियल एस्टेट बिजनेस, आज ही मैं किसी को मॉर्निंग में बोल रहा था, जो रियल एस्टेट बिजनेस देखने में लगता है कि इतना इजी है, क्या वो इतना इजी है? तो प्लीज़ कम टू माय ऑफिस, मैं आपको दिखाता हूँ. बिकॉज मॉर्निंग होते ही वहाँ पे वो सेल्स मैनेजर उधर फॉलोअप कर रहा है, अपडेट CRM नहीं अपडेट हुआ, लीड्स का क्या है मैजिक ब्रिक्स से फॉलोअप किया, क्लाइंट्स जो बार बार ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो इस बार आना था वो नहीं आए, डिटेल किसी को भेजा नहीं, कोई क्लाइंट जिससे आपने प्रॉपर फॉलोअप किया उसने कहीं और पे क्लोज कर दिया. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स. Okay. तो इन सब के लिए ये क्यों होता है? आपका PR और नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, सिंपल सा मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, अगर मतलब मेरे पास भी नॉलेज नहीं होगा, मतलब अगर मैं क्लाइंट हूँ मान के चलो, और एक सेल्स मैनेजर मुझे फ़ोन कर रहा है, और दैट मीन्स आई हैव ए प्रॉब्लम, दैट मीन्स आई वांट टू बाय ए हाउस, दिस इज़ माय प्रॉब्लम. सामने वाला बंदा क्या प्रॉब्लम सॉल्वर है? क्या वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? अगर नहीं कर पाएगा मैं उससे नहीं लूँगा. राइट. करेक्ट. तो अगर वो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे 2 BHK चाहिए, मेरे बजट में चाहिए, मेरी लोकेशन पे चाहिए. अब इन सब सेल्स मैनेजर में से कौन है जिसको सब कुछ पता है, जिसको मेरे बजट का घर पता है, जिसको कनेक्टिविटी पता है, जिसको प्राइस पता है, सब करवा देगा? मैं उसके पास जाऊँगा. सिंपल, इट इज़ सो सिंपल. बट काफ़ी लोग इसके पीछे भागते रहते हैं कि नहीं कॉल करो सर, आ जाओ. वो आ जाओ वाला सिस्टम नहीं काम करता है. Okay. नॉलेज काम करती है मैन. सो दैट फर्स्ट पॉइंट एज आई सेड, knowledge. After getting the knowledge, then you can go for marketing, wherein as of now there are multiple sources. जैसे आप मैजिक ब्रिक्स से पैकेजेस खरीद सकते हो. Okay. 99 एकड़ से, हाउसिंग से, अलग अलग तरीके के पैकेजेस हैं. आप 50,000, 1 लाख, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्ट करके आप पैकेजेस खरीद सकते हो. वहाँ से आपको लीड आने लगेगी. तो नॉलेज आपने सबसे पहले ले ली. Okay. उसके बाद आपने पोर्टल्स के थ्रू इन्वेस्ट करके क्लाइंट ले लिया. Okay. अब आप प्रॉपर उनसे फॉलोअप कर रहे हैं, प्रॉपर उनको डिटेल दे रहे हैं, क्लाइंट भी आपके पास है, नॉलेज भी आपके पास है. इसके बाद जो सबसे बड़ा जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं वो है फॉलोअप. रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है, जैसा मैंने बोला कि क्लाइंट एवरी टाइम, आई मीन एवरी मंथ नहीं खरीद रहा है. तो इट टेक्स टाइम, पेशेंस वाला काम है जी. ऐसा कई बार होता है. अभी लास्ट हमने एक डील क्लोज किया तो मैंने उसका फॉलोअप ट्रेल में देखा. इट वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 2 years. 2 साल से फॉलोअप चल रहा था. तो अगर 2 साल से फॉलोअप अभी नहीं चल रहा होता तो अभी नहीं. मैंने अपनी टीम मेंबर को बोला, मैंने कहा 2 साल से फॉलोअप चल रहा था. पहले उनसे बात किया, वो आए, फिर आइडिया उनका ड्रॉप आउट हो गया, नहीं चाहिए था, फिर फैमिली में कुछ हो गया, फिर उनको बुलाया, फिर ये चल रहा है, उसके बाद डील क्लोज हो गया. तो जितना अच्छा आपका फॉलोअप होगा, आप CRM यूज़ करो, नहीं होता है CRM, डायरी यूज़ करो, एक्सेल शीट यूज़ करो, गूगल यूज़ करो. नॉलेज, बाकी मैंने मार्केटिंग बताया, और दूसरा आपका जो फॉलोअप्स है. Okay. ये अगर प्रॉपर फॉलोअप किया तो रियल एस्टेट बिजनेस बड़ा सक्सेसफुल होने वाला है फॉर एजेंट. एंड डेवलपर्स के साथ जुड़ना वो सिंपल काम है, वो दैट्स नॉट अ बिग इशू. वो सिंपल काम है बिकॉज वो उसके लिए आपको रेरा और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा. ओके. वो आप कर दीजिए, उसके बाद दैट्स ईजी.
ओके. बिकॉज आज के टाइम पे R&D कम से कम आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कल मुझे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी अंधेरी ईस्ट में, तो मैंने सिंपली 99 एकर्स पे गया, लिस्ट बनाया. बाद में अपनी सर्च, इतने सारे लोग डिटेल भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप पे सर्च मारा, सब मिल गए. ओके. तो वो ईजी है. ओके. मेन नॉलेज है, मैं आगे नहीं बोलूँगा. Okay. नॉलेज के बिना ये कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा. Okay. हाँ. And from a customer's point of view, what red flag should they watch out for when they're buying a house property? Red flag as in if it is too cheap, please be aware. बिकॉज अगर बहुत सस्ता मिल रहा है, कुछ समथिंग आउटस्टैंडिंग मिल रहा है. सी कस्टमर्स का क्या होता है ना कि या तो आप प्रॉपर R&D करके आएँ, या तो आप किसी कंसल्टेंट के साथ आएँ. ओके. अगर किसी भी सिटी में हो, किसी भी एरिया में हो, अपने एरिया के एक नॉलेजेबल कंसल्टेंट को लेके आओगे तो बेटर है, नहीं तो प्रॉपर R&D करके आओ. दो चीज़ें तो ज़रूरी हैं. ओके. अगर दोनों में नहीं, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आज घर खरीदना है, चलो निकलते हैं, गाड़ी उठाई और निकल गए. एक प्रोजेक्ट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अच्छा ये प्राइस है, ये नेगोशिएट किया, समझ में आ गया, क्लोज कर दिया. मतलब आपने मार्केट की R&D की ही नहीं. ओके. आपको पहले पता तो होना चाहिए कि भाई ये, फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंट को क्यों पता रहता है. एक कल ही एक क्लाइंट आई थिंक कल परसों पूछ रहे थे कि ब्रजेश व्हाट इज़ द बेनिफिट इन गोइंग विद यू और डायरेक्टली. तो मैं कहा सर सिंपल सा रीज़न है. कौन सा प्रोजेक्ट है? लेट्स से L&T. L&T में वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 6 years. 6 साल से जो 6 years नहीं, जो 4 साल मान लो, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4 years. 4 years में कितनी बार मैं L&T में डील्स पे बैठा हूँगा, कितनी बार मैंने निगोशिएट किया होगा, तो मुझे पता है उनका बॉटम प्राइस क्या जाता है. ओके. आप जो बॉटम प्राइस आज डिस्कस करने बैठेंगे, ओके. वो मुझे सर ऑलरेडी पता है. ओह. मे भी अगर किसी ने बोला 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप बोलेंगे कि यार 380 होगा क्या, सर मुझे पता है उसका 350 जाता है. वाओ. तो इट इज़ बेटर जस्ट बिकॉज इंडिया में माइंडसेट यहाँ पे ऐसा है कि ब्रोकर अगर बीच में आएगा ना तो शायद प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाएगा. करेक्ट. हाँ. बट बढ़ जाएगा के चक्कर में वो ज़्यादा बढ़ जाता है. आप समझ रहे हो. तो ब्रोकर भी चूज़ करो, तो चैनल पार्टनर ब्रोकर चूज़ करो तो अपने एरिया का फाइंड आउट. पहले उससे पूछो कि आपने कितना डील क्लोज किया है, आप मार्केट में कब से हो, कितना इन्वेंट्री क्लोज किया है. ओके. अगर वो एक्सपीरियंस है, इफ़ ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सर यस, देन गो विद हिम. ओके. एंड इनफैक्ट इन योर लाइन ऑफ बिजनेस वेयर योर चैनल पार्टनर, इनफैक्ट कस्टमर को कुछ इनफैक्ट खर्चा पड़ता ही नहीं, बिकॉज यू डायरेक्टली गेट द मनी फ्रॉम द बिल्डर. करेक्ट. So it's in fact very beneficial for the customer to close with you because you will get the best price for the customer. Correct. That'll be the bottom price. So Correct. very nice point actually. So this is the reason, in fact, few of the client, they appreciate this thing and they understand. People who are working, people who are NRI, they तो understand कि भाई ब्रोकर तो चाहिए चाहिए. Correct. हाँ. बिकॉज वहाँ पे तो है. हाँ. यहाँ पे कुछ क्लाइंट हैं जिनको लगता है कि शायद अगर मैं एक ब्रोकर को बीच में लेके आऊँगा तो प्राइस बढ़ जाएगा. बट इट्स ओके, वी नीड टू एजुकेट देम. तो हम लोग बताते भी हैं. अब जैसे मैं कनाकिया में था, विच वॉज ए वेरी रेयर थिंग आई थिंक, जो शायद मुझे नहीं लगता कोई बताएगा. आई वॉज इन कनाकिया ग्रुप. आई यूज टू सिट विद मार्केटिंग टीम. अगर कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है और उस पर जो आपका ब्रोकरेज बनता है, अगर ब्रोकर के थ्रू जाने का, मान लो 1-2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, जो भी है, तो अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट जाएगा तो भी वो प्रॉपर्टी आपको उतने की मिलेगी. क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ 2% है ना, वो मार्केटिंग टीम में जाता है, वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जाता है. आप समझ रहे हैं. ओके. तो जो एक नॉर्मल क्लाइंट को लगता है कि यार मेरा प्राइस बढ़ गया क्या, आप डायरेक्ट जाओगे तब भी आपको सेम ही प्राइस मिलेगा. चैनल पार्टनर के थ्रू जाने से प्लस पॉइंट यही है कि ही हैज़ द नॉलेज ऑफ बॉटम प्राइस. राइट. तो इसलिए मैं जब भी क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, सर दिस इज द कोटिंग प्राइस, दिस इज द बॉटम प्राइस, यू डिसाइड. एंड यूजुअली कितना रहता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई 2 करोड़ का कोट कर रहा है तो कितना मार्जिन रहता है, टू बॉटम उसका कितना रह सकता है? एवरी डेवलपर इज हैविंग ए सेट पैटर्न. ओके. लेट्स से इट इज L&T. You can negotiate up to 25 to 30 lakh. Oh. Yeah. So almost around 10%, 12%, 15% तक. Yes. Okay. Let's say a developer like Kanakia. I have negotiated for up to 50 lakh for my client. 50-60 लाख रुपए के आसपास भी negotiate किया हुआ है.
हीरानंदानी बहुत कम नेगोशिएट करता है, अच्छा 2-3%, मैक्सिमम 4% कर दिया. ओके ओब्रॉय रेयर, इट्स अच्छा MRP अच्छा करते ही नहीं है. ओके कई और भी डेवलपर है मार्केट के कि वहाँ पे 10 लाख होता है, 20 लाख होता है. तो जस्ट बिकॉज वी आर इनटू प्रॉपर्टी, मॉर्निंग से इवनिंग तक लैपटॉप ओपन होता है, हम फॉलो अप करते हैं, रात को बंद होता है. हाँ तो हम लोग को तो एरियाज़ का पता रहता है कि कौन से एरिया में कौन से बिल्डर का क्या बॉटम प्राइस जा रहा है. ओके तो वो जो टाइमिंग थोड़ा बच जाता है. okay so we have a real estate edition section where we speak about myth versus fact. ओके तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछ लूंगा, आप बताइए ये मिथ है या फैक्ट है. ओके चैनल पार्टनर्स ऑलवेज पुश व्हाटएवर गिव्स देम द हाईएस्ट कमीशन. So it's a myth, first of Okay. all. The reason is, if you talk to our team or if you talk to me, first of all, I'll understand your requirement and I'll push you something which is fitting into your requirement. And commission or brokerage, it is not very, for example, as I said, 4% is offering someone जो प्रोजेक्ट हम कर ही नहीं रहे, राइट. तो अगर जो प्रोजेक्ट पे मुझे ही डाउट है, जो हम कर ही नहीं रहे, मैं आपको पुश क्यों करूंगा उसके लिए, सर जाके दे दो वहाँ पे. मैंने बोला कि प्रॉपर्टी इंसान एक बार खरीद रहा है, 2 बार खरीद रहा है, चलो 3 बार खरीद रहा है, तो ऐसी जगह पे पुश नहीं करेंगे. तो उतना जो डिफरेंस होता है वो आता ही नहीं है. ये जो रीसेल के डील्स होते हैं कि कहीं पे 2% मिल रहा है, 1% मिल रहा है, वहाँ हो सकता है, बट नॉट फॉर इसमें चैनल नहीं होता है. पार्टनर्स. ओके. एंड द मुंबई रियल एस्टेट मार्केट इज ओवर प्राइस्ड एंड इज इन अ बबल. मुंबई रियल एस्टेट प्राइस बबल में ना था और ना होगा मेरे हिसाब से. आई हैव सीन कोविड टाइम. कोविड में भी मैंने आपको बताया कि जो मैंने इतने सारे कॉल्स किए, 300 400 1000 कॉल किए, उसमें भी कई बार ऐसे इन्वेस्टर थे, ब्रिजेश टेल मी आई हैव माई मनी रेडी, अभी मैं बाई कर सकता हूँ. तो मुंबई ऐसा मार्केट है जहाँ पर इन्वेस्टर्स हमेशा रेडी हैं. ओके. और एकदम हाई प्राइस पे ये गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैंड उतनी ज़्यादा नहीं है. जैसे एक नोएडा में एरिया है, नोएडा एक्सटेंशन, वहाँ पे लैंड ही इतनी ज़्यादा थी कि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बना दिए कि फिर वो पहले एकदम हाइप पे चला गया और उसके बाद जस्ट बिकॉज इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा आ गई कि फिर वो डाउन हो गया. मुंबई में जगह ही कहाँ है इतनी. ओके. अंधेरी में कितने प्रोजेक्ट आ सकते हैं, रेयर टू रेयर एक प्रोजेक्ट आया. पवई में कितना हीरानंदा नहीं आ रहा है. हाँ, अगर मुंबई की आउटर की आप बात करो तो वहाँ पे शायद ये हो सकता है, बट इसका भी एक सिंपल सा रूल है. जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर हैं और जहाँ पर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ओके. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस. सिंपल सा रीज़न है सप्लाई और डिमांड वाला. अगर सप्लाई इतनी ज़्यादा आ गई तो डिमांड कहाँ से आएगी. तो बेटर है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी मैं बोलता हूँ कि अगर करना है कहीं, तो ऐसी जगह पे करो जहाँ पे सप्लाई थोड़ी कम है. लिमिटेड इन्वेंट्री. करेक्ट. Okay. All builders in Mumbai are the same. You just need good negotiation skills. Yes. This is a fact. That's true. Okay. That's true. Real estate sales are slowing down in Mumbai post-COVID. No, not at all. No. Because I hope people have seen those time जब गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी कम कर दिया था. 5% से एक टाइम पे 2% कर दिया था, 3% कर दिया था, 6% का हो गया अभी. तो और जो उस टाइम के रिकॉर्ड आप देखोगे तो उस टाइम पे रिकॉर्ड मतलब पिछले 10-12 साल 15 साल के रिकॉर्ड टूट गए प्रॉपर्टी के. Okay. अगर आप लास्ट ईयर का भी देखोगे, जो फाइनेंशियल ईयर का, जी. तो भी आई गेस पिछले 14 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है. Okay. तो प्रॉपर्टीज का बिजनेस इज गोइंग गुड. Booming. Okay. Which area in Mumbai is the best for investment in 2025? डिपेंड ऑन योर बजट. Somebody say with a 2 crore ka budget. अंधेरी. Andheri east west. अंधेरी ईस्ट. East. Okay. And we have few rapid fire questions for you. ओके. One builder you would blindly trust with your own money. हीरानंदानी. Hirandani. Okay. Most underrated locality for property investment right now. सेंट्रल. Central. फ्रॉम मुलुंड टू LBS. Underrated है. You think it has a lot of growth potential? Yes, it has. Okay. Better ROI in Mumbai today, 1 BHK, 2 BHK, luxury or commercial? 1 BHK. 1 And BHK. 1 BHK and commercial. अच्छा. Yeah. उनका better ROI. कितना ROI रहता है usually उनका? 1 BHK का around 4%, Okay. which is decent in residential. Right. Commercial का around 6 to 8%, 6 to 8%. Okay. which is again decent.
Would you recommend somebody to buy an under construction property or a ready possession? Depend. For investment, I will For push first time buyers, whether it can be for their personal consumption. See, I would like to suggest them under construction. The reason is, in under construction, you get a lot of inventory choice. Okay. In ready to move in, because Mumbai RERA is, Maharashtra RERA is so strong that people buy in under construction. And by the time your OC comes, lot of what? 95% inventory gets sold out. Okay. Then you have to buy first floor, second floor, bad facing, this facing, that facing. Okay. So better if you want a good apartment and if you can wait, so buy under construction property, because at least in Mumbai, your money is safe Okay. in real estate. One hidden cost in Mumbai, Mumbai deals buyers always forget to factor in. Is there any hidden cost as such? There is no hidden cost as such. I Okay. mean, these all are cost sheet and everything is simple. That तो सब clubhouse transparent charges. है. Yeah, everything is transparent. Okay. But yeah, one thing I can tell you, which might benefit your, audience. Viewers, हाँ. You can, if you see a cost sheet, and if you want to negotiate on that, there is a clubhouse charges call. You can always negotiate on that. Clubhouse charges का Yes, cost. because in my most of the deal, I have waived off those charges. Oh, how to do this? How to go about it? Negotiation pattern. अच्छा. See, your flat cost is same. हाँ. Stamp duty you have to pay. Correct. GST you have to pay. Correct. Only one thing on which you can negotiate is या तो flat cost या तो club house charges. Okay. Club house charges कौन लगा रहा है? Builder. तो उस पे आप negotiate कर सकते हो. Okay. बाकी तो पे आप negotiate कर ही नहीं सकते. Okay. नहीं, good point. And top 3 documents every home buyer must check. Depend, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बाई कर रहे हैं तो CC होना चाहिए, IOD होना चाहिए, और बाकी रेरा पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए. IOD का what is the full form? IOD मतलब फुल फॉर्म जो आपका, आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म, बट दैट इज जो टोटल आपको परमिशन अभी तक का मिला है. Okay. So can you repeat again? तो क्या क्या documents लगेंगे? एक आपका CC, OC एंड IOD, Okay. ये 3. OC तो अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन से रेडी टू मूव इन में आ गई है तो आपको OC चाहिए, बिकॉज इफ समवन इज सेइंग सर इट इज रेडी टू मूव इन, बट इफ यू डोंट हैव द OC, दैट मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम. Okay. दैट इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं. एक जो आपका CC इज कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं कि इतना जो आपका परमिशन है 22 फ्लोर तक का परमिशन है, सो दैट इज योर CC. एक जो मैंने आपको IOD बोला कि टोटल परमिशन मेरे को कितना है. Okay. Rent versus buy in Mumbai. What's your top pick? What would you advise to people? सो ये रेंट वर्सेस बाइंग वाला मैंने भी काफ़ी देखा है, बट मैं थोड़ा टिपिकल माइंडसेट से आता हूँ, तो हम लोग हमेशा वही प्रेफर करते हैं कि भाई अपना घर होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट के लिए अलग हो सकता है, बट एज ए पर्सन सी एक घर तो आपको चाहिए चाहिए, राइट? तो ज़िंदगी भर तक रेंट पे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो मैं ज़िंदगी भर तक रेंट पे रहूँ. Okay. क्योंकि आप रेंट पे रहोगे तो बार बार ओनर से आपके डिस्कशन होंगे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी. बट अपना घर, आई डोंट नो, इट फील्स समथिंग डिफरेंट कि भाई अब आपकी जगह यहाँ पे है. तो आई ऑलवेज प्रेफर फॉर बाइंग ए हाउस. Buying, okay. उसके बाद आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है आप कर सकते हो, बट एक घर तो आपको होना लेना चाहिए मेरे चाहिए. अकॉर्डिंग. Okay. And biggest misconception about working in the real estate industry? That we are that it's a very easy business. अच्छा. And people can earn in bulk easily. So that is something which Biggest is, yeah, it requires a lot of hard work, lot of follow-ups, lot of calls, stress, patience. One thing which I learned from my acting career and I implemented in my real estate is patience, because it was same. एक्टिंग में भी यही होता था कि आप ऑडिशन दे के आते थे और यू कांट चेक कि क्या हुआ मेरा क्या नहीं हुआ. 2-3 महीने भी लग जाएंगे, टाइम लग जाएगा. और रियल एस्टेट में भी यही होता है. सो कीप वर्किंग कंटिन्यूसली, दैट इज ओनली की. Okay. So this almost brings us to the end of the podcast. I just had one final question for you. आपकी लाइफ में तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए एंड इनफैक्ट आपका जॉब चला गया था, आप 75% कट लिए, वो भी आपको पेमेंट ठीक से नहीं मिला. देन यू वर डूइंग ऑड जॉब्स अलॉन्ग विथ रियल एस्टेट, and then God's grace you have come to a place now where you're doing pretty well for yourself. So for someone watching this video and they are frustrated in their job and they want to pursue entrepreneurship,
What's your honest advice to them? Okay, so first of all, for people who think business is easy, I'll switch from job to business and I'll sit relax. So that's a myth. ऐसा नहीं होता है. Business is a full time job kind of, right? जितना आप जॉब में मेहनत कर रहे हैं उससे डबल ट्रिपल आपको बिजनेस में करना पड़ेगा. Right. बिकॉज यू आर रनिंग ए कंपनी नाउ. जॉब में समवन इज ऑन योर हेड एंड समवन इज गाइडिंग यू. Yeah. सो जॉब में ऐसा नहीं होता है. बिजनेस में ऐसा नहीं होता है. बिजनेस में आपको ही सब कुछ करना पड़ता है. हो सकता है एक पॉइंट जब आपका काम करने का मन बिल्कुल नहीं हो, उस टाइम पे आप ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, बट काम करते रहते हैं. और बट बिजनेस में आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा. कभी बिजनेस होगा, कभी नहीं होगा, बट गाइड करने वाला और कोई नहीं होगा. आपको ही खुद को चार्ज करना पड़ेगा. तो बिजनेस इज़ गुड, बट आपको कई सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी. उतना पैशन आपके पास होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि कुछ भी मेरे पास अर्निंग वगैरह नहीं होगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्या आप 6 महीने 1 साल तक काम कर सकते हो? अगर उतना कैपेसिटी है तो आप बिजनेस में आ सकते हो. Okay. अगर आपको लगता है कि मैं दिन रात काम कर सकता हूँ, जॉब में तो 9 to 5 का है. अगर आपको लगता है कि दिन में भी काम करना पड़े, रात में भी करना पड़े, तो भी मैं कर सकता हूँ, तो आप बिजनेस में आ सकते हो. Okay. ऐसे कई बार होंगे जब आपको अपनी चॉइसेस को थोड़ा मारना पड़ेगा. सैलरीज नहीं होंगी बिजनेस में. आपके पास मान लो बिजनेस नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है. बिजनेस करना तब इजी है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, राइट? जब बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, तब तो इजी है. सबसे डिफिकल्ट है जब कुछ नहीं हो रहा है. When there is no business, I remember in my firm for 8 to 9 months after starting this, 8 months almost, last year की बात है, there was nothing working. Okay. कुछ भी नहीं हो रहा था. टीम भी परेशान हो गई थी कि सर क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा. मैं कहा इट्स ओके, कीप वर्किंग. देयर इज़ नो सेकंड चॉइस. क्या मेरे पास कुछ सेकंड चॉइस है? क्या तुम्हारे पास है? नहीं है. चुपचाप काम करो. तो उस टाइम पे आई मेड श्योर कि मेरे पास सैलरीज मेरी 1 तारीख को जाती रहे. Okay. बिकॉज बिजनेस में अगर मेरे पास कुछ पैसा आया, नाउ आई नो कि मेरी कितने महीने की सैलरी है, कितने महीने का ऑफिस रेंट है. Okay. तो ये मैंने बचा के रखा. अब अगर उसके बीच में मुझे कुछ खरीदना भी, आईफोन, लैपटॉप, कुछ भी खरीदना, तो शायद मैं नहीं खरीदूंगा. Okay. क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर बाई चांस डाउन हुआ तो मैं 2 महीने के लिए इनको ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार मेरे पास पैसा नहीं है. तो उतना बैकअप मैं हमेशा बना के चलता हूँ. Okay. आपको अपनी चॉइसेस को मारना पड़ेगा. Right. तो बिजनेस इज लाइक योर बेबी. आपको उसको थोड़ा अच्छे से प्यार से ग्रो करना पड़ेगा. Right. ऐसा है. No, nice. Well said, Brajesh. Thank you so much for joining us for the podcast today. It was a pleasure having you here. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching this episode till the very end. If you found this episode to be valuable and insightful, then please like, share, and subscribe to our channel. And let us know in the comment section below on how we can improve our future podcast. Thank you.